अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंटेशन वाला ग्रुप ज्वाइन कर चुका? यस सर। स्क्रीन शेयर किया किसको? राइट्स को सर मुझे दे दें। अच्छा, तो क्या सीक्वेंस है आपकी प्रेजेंटेशन का? पहले कौन? सर पहले हमजा ताहिर, फहद इफ्तिखार, फिर मैं हाफिज फैजान। हमजा ताहिर बस आ रहा है। फहद इफ्तिखार एंड हाफिज फैजान। हाफिज फैजान। ठीक, अच्छा ठीक। चलें, जब आप लोग सेटअप रेडी हो जाए खुद ही स्टार्ट कर दें इसको। राइट्स मैंने हाफिज फैजान को दे दी। यस सर, बस हम जा रहे हैं, करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, करें कंटिन्यू। सर कर दें स्टार्ट? जी, आप लोगों हाँ को जी, 2 दफ़ा कहा है स्टार्ट कि कर। कर दें। अस्सलाम वालेकुम। My name is Hamza Tahir and I am here to present the strategic planning adopted by Atlas Honda. My group members are Fazan Butt and Fahad Iftikhar. Many companies start from zero and now they are leading the world. Honda Atlas is one of them. The main reason for their is excellence and success is their strategic planning and organizing technique, which boasts their production and will discuss some of them here. Vision. The vision statement defines the purpose of the organization and instills a sense of belonging and identify to the employees. This motivates them to work harder in order to achieve success. Vision of Honda is to remain a market leader in the motorcycle industry and emerge as a globally competitive center of production and export. Atlas Honda is by far for the largest selling motorcycles in the country with the unmatched reputation for high quality, reliability, and after sales service. It has managed to develop local manufacturing capabilities to the highest economically feasible level. While a major role in localization as given to the vendor industries, Atlas has the country's largest in-house manufacturing capability at Karachi and Sheikhupura plants. Atlas Honda Limited is playing a vital role in creating conditions for easy and confident use of bike all over the country. It has a vast network for 1600 sales service and spare parts dealers point, which are also growing with growth of company. It has set up Bonnet and Training Center in the Karachi and Lahore, which provides several courses about the complexity of the motorcycles to mechanics and its users each year. Mobile training facilities take the latest know-how technology and maintenance of the motorcycle is major rural and urban center across the country. Now my friend Fahad Iftikhar will continue. अस्सलाम वालेकुम।
In Atlas Honda, the management style is benevolent autocracy, which means the employees are expected to be loyal and cooperative in production. The behavior of the top management when employees is decent and kind, but decision making is centralized. The Honda's company object is irreplaceable to all Honda partners with regards to understanding the justification, the presence of the organization. Top administration at AHL Honda Atlas Limited attempt to grant the statement of purpose is suitable to the reason for association, includes obligation to consent to prerequisites and to constantly, and provides a system for building up and investigating the predefined targets, is conveyed and perceived inside the association, is a set for ceaseless suitability. There are some strategic goals adopted by Honda which helps them to lead and roll motorbike industry and the main reason of our presentation. And they believe before customer, their employees and their asset, and so work on our asset, and a better chain of communication is important to rule the industry, which is only possible when you are the most product seller, or the which is on demand is only possible when possible in focusing their customers' demands, their needs, their budgets, and that is what Honda is doing by us setting a top quality as a top priority. Next slide. Main products. And there are the main products of Atlas Honda or their prime focus. The two of them are the four stroke bikes. For both of them, I have a decent and notoriety on logo on the lookout of, and that is the explanation that Honda has roughly 63% of portion of overall industry nowadays. The essential explanation of this achievement is quality kept up by the organization all through its profession. The company also exports motorcycles to Sri Lanka, Afghanistan, and Bangladesh. Atlas Honda has product Pakistan's largest in-house manufacturing capability at Karachi and Sheikhupura plants, which includes an R&D wing and tool making facilities through serial cam. And the annual assembly production capacity of Atlas Honda is 1.3 million units, with 1,50,000 units from the Karachi plant and 1.2 billion units from the Sheikhupura plant. Assalamu alaikum. Now I will continue from here. Products. As they are the largest motorcycle manufacturer, mainly because of their product quality, on which they never compromise, they believe in order to increase the market share. The marketing department performs the following tasks: new models, change in design, in-house production. All these products are need to be passed the quality test which Atlas Honda has set. Their quality policy is commitment to provide high quality motorcycles and parts, right work in first attempt and on time, maintain and continuously improve the quality, training of manpower and acquisition of latest technology, safe, clean and healthy environment, market leadership and prosperity for all. Strategic planning on revenue. As far already told you that the Honda has roughly 63% portion of overall industry nowadays. The essential explanation of this achievement is the quality that kept by the organization all through its profession. This graph shows the previous 7 years, showing the increase of revenue per year due to their strategic marketing and organizing planning, which helps them to grow upwardly and lead the industry. Why we chose Atlas Honda? We chose Atlas Honda because of their huge demand in public. No doubt their prices are high, but still people believe in them, showing that their product is speaking loudly the effect of every department. In terms of revenue, no one is near them, and they are leading this industry from years. That is why we chose them. Thank you. अच्छा, हमजा तैयार और फाद में से इसकी थोड़ा सा गुड बैड्स पे बताएं कि
क्या मार्केट इनकी स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से ये अप या डाउन या समहाउ ये चेंजेस के ऊपर आए? यस सर, मैं बताता हूँ आपको। सर जो इनकी मार्केटिंग, जो हमने ऊपर डिस्कस भी किए हैं कि जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी कि एक तो इनकी थी कि इन हाउस प्रोडक्शन होनी चाहिए, क्वालिटी टाइम टू फर्स्ट होनी चाहिए इनके प्रोडक्ट, मतलब इनकी हर प्रोडक्ट जो है फर्स्ट ऑफ द ईयर में इनके मार्केट में आनी चाहिए, और फिर सूटेबल होनी चाहिए, और फिर जो कस्टमर की नीड्स हैं उसको रिक्वायर होना चाहिए। मतलब आज जब हम देखते हैं कि होंडा जब भी आती है, उनकी मतलब एक होंडा और एक दूसरी यूनाइटेड की बाइक को देखने से प्राइस में मेजर डिफरेंस होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी की जो वजह से या जो है उनकी जो प्रोडक्शन है और वो और जो उनकी साइलिंग है वो रुक नहीं रही। तो ये जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर जो उनकी कामयाब हो रही है। ठीक। अच्छा, और कोई स्टूडेंट रहता हो? यस सर, फिजान फिजान ने कुछ बताना सर? नहीं, बस ठीक। चलें जी, अभी अटेंडेंस लगा के तो नेक्स्ट को करते हैं। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द अटेंडेंस। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आप नहीं चेंज हो प्रेजेंट सकते? सर। माइक बंद, हाँ माइक बंद है, मैंने आके माइक ऑन करवाने। मैं कौन सा प्रेजेंट सर। मुझे पता लग गया प्रेजेंट। मैं आपको कौन सा कोई सरप्राइज़ दे रहा हूँ? जब एक बंदा अनाउंस कर रहा है कि प्रेजेंट जो है वो अटेंडेंस लगाने लगे, इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं दूर दराज फिर रहे होते हैं। एक मिनट, ज़रा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से मैं, चले अभी लाइट आती है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम उतनी देर में लेक्चर ज़रा शुरू करते हैं। आपके कुछ लोग जो हैं बड़ी एक्सट्रीम किस्म की एजेस पे अटेंडेंस के बैठे हुए हैं, और अभी भी वो उनका बिहेवियर कंटिन्यू है एब्सेंटेज का ना। सो इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। आप लोग टाइम आ लेने दें, देन आई विल जनरेट एन ईमेल। जो कोई भी है, कोई तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 10 से 12 ईमेल्स अटेंडेंस के ऊपर मैं कर चुका हूँ अब तक, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा ही होंगी। लेकिन उससे किसी का कंसर्न नहीं है, लेकिन अभी पैदा हो जाएगा जब मैं उसको उसकी काउंटिंग वगैरह को देखूंगा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम जस्ट अ सेकंड, ओके जी, लास्ट टाइम हम देख रहे थे बेसिकली इंजीनियर्स और जो इंजीनियरिंग मैनेजर्स बीइंग अ लीडर, जो टेक्निकल पर्सन से लीडिंग रोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, उनको जो था वो हम देख रहे थे। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि इनोवेशंस वगैरह का क्या रोल है। ठीक है, इनोवेशंस किस तरह से आप करते हैं, जैसे रिसर्च होती है, सो उसका क्या रोल है यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस सेटअप के अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि करंटली मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है, और ये क्रिएटिविटी कैसे पैदा होती है। ये बेसिकली जो सोसाइटी जो प्रॉब्लम फेस कर रही होती है उनके सॉल्यूशंस के लिए एक क्रिएटिव अप्रोच यूज़ की जाती है। ठीक है, सपोज अभी कोविड-19 के अंदर किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक सो कॉल्ड वायरस या डिजीज़ जो है उसका सबको सामना करने पड़ेगा। तो उस सेंस में मास्क जो थे वो जस्ट पहले नीड थी मेडिकल वालों की, और उनके मास्क डिफरेंट टाइप के होते थे। आपके पास सैनिटाइजर्स माइट भी वही लोग यूज़ करते हैं, आपको यूज़ करना पड़ा।
ये तो चले मार्केट में चीज़ें थी और इनका यूजेज बहुत कम था, वो बहुत एक्सटेंड कर गया, लेकिन जो वैक्सीन है, जो वैक्सीनेशन लोग लगवा रहे हैं और डिफरेंट कंपनीज़ की हैं, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की रिसर्च और उनके ऊपर कमेंट्स अवेलेबल हैं WHO की तरफ से। वैक्सीनेशन की तरफ तो एटलीस्ट कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो सोसाइटी को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उसकी बेस के ऊपर ये सॉल्यूशंस जो है वो सामने आए। फिर इसी तरह आप इलेक्ट्रिकल की अगर इंडस्ट्री में देखें तो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज थे उनकी तरफ ट्रेंड था, जो ट्रेडिशनल थे। फ्रॉम द डे फर्स्ट हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर देखें तो वाटर को यूज़ करके, या आपके पास कोल को, या जहाँ पर नेचुरल गैस अवेलेबल है उसको यूज़ करके, लेकिन कुछ डेकेड से रिन्यूएबल एवेंचुअली जब आई तो सोलर और विंड की तरफ जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ किया और एवेंचुअली वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो नीड क्या महसूस हुई कि अब हर जगह पर नॉन रिन्यूएबल के ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी थे, वो सारी चीज़ें यू आर वेल फेमिलियर विद इट, वो ऑन एंड ऑफ आप प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उसको आप डिस्कस करते रहते हैं। तो वक्त की ज़रूरत को देखते हुए सोसाइटी का एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बाकी जो रिसोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, उसको आप होम अप्लाइंसिस के ऊपर या होम बेस्ड वो सॉल्यूशन नहीं है, वो गवर्नमेंट बेस्ड हैं या इंडस्ट्री बेस्ड हैं। कोई प्राइवेट बहुत बड़ी इंडस्ट्री एक प्रोजेक्ट लगा सकती है पावर प्लांट का, या गवर्नमेंट जो है वो कोई सेटअप स्टार्ट कर सकती है। तो इनफरादी तौर पर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो आप लेट से सोलर वगैरह में ही कर सकते हैं, या रूरल एरियाज़ में जहाँ पर गौ डंग वगैरह गोबर अवेलेबल है वहाँ पे आप कोई छोटा सा बायोगैस का सेटअप कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें जो कि कस्टमर कर सकता है, सॉरी जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पर्पस बेस्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो जो इनोवेशन, जो क्रिएटिविटी आती है वो किसी मसले को देखकर मोस्टली जो है वो फिर आती है, आपके जहन में कोई आइडिया क्लिक करता है कि प्रीवियसली ये हो रहा था और अब, ठीक है। जैसे रोबोटिक्स अगर इंडस्ट्री में आई है तो वो मैनुअल जो हर्डल्स हैं उनको देख के आई है, ठीक है। बहुत सारे लोग रोबोटिक्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों ने किए हुए हैं, और वो उनका जो कंट्रोल है वो एक थ्रू रिमोट है, या जहाँ पर आप नहीं जा सकते वहाँ पे जो रोबोट है वो वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। कुछ और डिफरेंट टाइप की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपने किए होंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में करते हैं कि आप पहले तो जो स्प्रे है वो आप फसल के अंदर से गुजर के कर रहे हैं, आप टॉप पे कोई हेलीपैड टाइप या इस तरह का कुछ सिनेरियो बना लें कि आप टॉप से स्प्रिंकलिंग कर दें और वो सारी को हो जाए, उसमें टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। और भी उसके ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो इस तरह इनोवेशन जो है वो थ्रू नीड आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने देखना है कि जब आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे सो आप भी देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या नीड है, करंटली टेक्नोलॉजी किधर जा रही है। अब जैसे 4G 3G 5G ये सारी चीज़ें आई, एक तो पैकेजेस बहुत एक्सपेंसिव थे और एक डेटा रेट उनका बहुत स्लो था, और ये एक ज़रूरत थी वक्त की कि चीज़ें कुछ इस तरफ जाएं, ठीक है। सो चीज़ें उस तरफ आई हैं, ठीक है। और इवेंचुअली अब और से और नेक्स्ट से नेक्स्ट चीज़ें जा रही, सो हर तरफ इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो है वो है, ठीक है। सो इनोवेशन बेसिकली क्या है कि ये तो मेरे ख्याल से आपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी देखा होगा, जब आप कोई नया सेटअप कोई स्टार्टअप लगाते हैं तो थोड़ा सा आप डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट ट्रेंड है। इनोवेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो मैंने चीज़ हाईलाइट की हुई, इनोवेशन इज डिफाइंड एज द एक्ट कमिंग अप विद समथिंग न्यू दैट एड्स वैल्यू टू कस्टमर्स एंड कंपनीज अलाइक। कंपनीज और कस्टमर की नीड्स को देखते हुए वैल्यूज़ आप ऐड करते हैं, और इसी के ऊपर अभी मैं सारी समरी आपको बता रहा था कि आप ज़रूरत के तहत जो है वो। और अगर इन एनी केस सेकंड जो चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है, इन एनी केस अगर कोई इंडस्ट्री जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर में अगर इनोवेशंस की तरफ या जो न्यू चेंजेस आ रही हैं, जो डायनामिक एक इन्वायरमेंट है बिजनेस का, अगर उनको देखते हुए करंट नीड्स के थ्रू काम नहीं करते तो वो इवेंचुअली मार्केट से आउट हो जाएंगे। जैसे नोकिया के ऊपर अभी एक प्रेजेंटेशन भी किसी ने दी थी, और वाई नोकिया फेल्स या समहाउ। सो वो किस तरह से मोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उससे किस किस तरह एक टाइम के लिए थोड़ा सा आउट हुआ था और अब दोबारा इन होने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें ऑब्वियसली जो मैंने आपको कहा कि कुछ स्टेजेस हैं, किस तरह से आप काम करते हैं, क्या होता है,
या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी एक अप्रोच यूज़ की होगी। नो डाउट कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल एक नया एक नहीं था सेटअप, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, लेकिन उसकी जो वर्किंग है वो सेम है कि आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर कैसे काम करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने की जो थिंकिंग है वो सेम होती है। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पर क्या, अगर आप पिक्चर के अंदर देखें, सो एक प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है कि सोसाइटी है आपके पास, ऑरेंज से कलर के अंदर अभी डायग्राम आपको नज़र आ रही, आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, वो मेन मोटिवेशन होती है, दैट इज़ द रीज़न टू डू अ रिसर्च। ठीक है, या टू डू अ प्रोजेक्ट। और आप लोग क्या काम करते हैं कि स्टार्ट में आपने लिटरेचर रिव्यू ऑब्वियसली आप करते हैं, और आप लोगों ने किया भी होगा, उसके ऊपर आपने एक चैप्टर भी पूरा लिखा होगा और रेफरेंस में उसको मेंशन भी किया होगा। ठीक है, जिसमें आप रॉ डेटा को देख रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर को आर्टिकल्स हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट बिजनेस की अगर बात करें तो ऑलरेडी बिजनेस प्रैक्टिस जो हैं, केस स्टडीज़ जो हैं वो डिफरेंट, उनको आप रीड आउट करें और आप एक रफ से फॉर्म में किसी एक डेटा, किसी एक नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। उस आप अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज को, अपने विजडम को यूज़ करते हुए फिर आप इवेंचुअली जाते हैं मेथडोलॉजी की तरफ। इसी लिटरेचर रिव्यू से आप चूज़ करते हैं कि कौन सी मेथडोलॉजी बेस्ट रहेगी, कौन सी प्रैक्टिस ठीक रहेगी, और इवेंचुअली सारी रीडिंग्स के बाद आप एक किसी मेथडोलॉजी को चूज़ करते हैं according to the previous knowledge, according to the literature review, according to your own wisdom, आप किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं। सो आप उस मेथडोलॉजी को यूज़ आपने किया, वो आपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का एक चैप्टर भी लिखा, एंड देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स द रिजल्ट्स एंड एनालिसिस एंड आउटकम्स। ठीक है, और फिर इवेंचुअली आपके कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं जो कि स्टार्ट में आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, सो दैट इज़ द सेम वे कि हाउ वी आर गोइंग टू डू अ रिसर्च अगर हमें करनी हो। सो व्हाट इज़ द वे टू डू अ रिसर्च। ठीक है, सेम मैकेनिज़्म है। जस्ट द थिंग इज़ कि आपकी जो फाइनली प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट था, वो एक ऑन गोइंग चीज़ थी, वो यूनिक नहीं था, वो बहुत डिफरेंट नहीं था, वो ऑलरेडी मार्केट में था। आपने जितने भी सारे 3 to 4 ईयर्स के कॉन्सेप्ट्स थे उनको आपने इम्प्लीमेंट किया और आपने एक बेहतर प्रोजेक्ट में आने की कोशिश की, क्योंकि अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर यूनिकनेस या इनोवेशंस या इसका उतना फोकस नहीं होता जितना कि मास्टर लेवल के ऊपर या पीएचडी लेवल के ऊपर होता है। सो जस्ट आपने अपने ओवरऑल जो कंपोनेंट्स थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनको सम हाउ आपने यूज़ करते हुए कोई एक रीज़नेबल प्रोजेक्ट जो है वो करने की कोशिश की। ठीक है, सो अगर आप रिसर्च करना चाहें तो दैट इज़ द सेम वे, बस उसमें होगा क्या कि आप यूनिकनेस की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये भी काम हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, मैं इसमें कुछ डिफरेंट कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो यूजिंग द सेम डेटा आप कोई डिफरेंट अप्रोच है, कोई नया आइडिया आपके जहन में आता है, आप फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और इवेंचुअली वो जर्नल्स में या सम हाउ इंडस्ट्री अगर उसको फॉलो करके प्रोडक्ट बनाती है तो वो लीड कर जाएगी। और अगर आप अकेडेमिया में हैं तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो लीड करेगा, उसकी बेस के ऊपर डेफिनेट सी बात है आपकी पब्लिकेशंस बढ़ेंगी, लोग उसको साइट करेंगे। जैसे आप किसी का रेफरेंस साइट करते हैं तो उनकी साइटेशंस इंक्रीज़ होती हैं, उनको अपना उस पर एडवांटेजेस हैं। उस रिसर्च को जब इंडस्ट्री देखेगी कि ये एकेडेमिया के लोगों ने ये रिसर्च की है, ठीक है, तो उसको देख के हो सकता है अपनी प्रोडक्ट को उसकी तरह वो मैप करने की कोशिश करें। तो ये बेसिकली एक वे है कि कैसे रिसर्च में इंडस्ट्री और रिसर्च यानी कि एकेडेमिया जो है वो किस तरह से ऑन एंड ऑफ काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम रियलिटी बेस्ड होती है, तभी किसी के जहन में कोई ना कोई आइडिया आता है। अभी फॉर एग्जांपल कुछ नए स्टार्टअप्स बिजनेस में, जैसे मेडिसिन में क्या होता है कि आप मेडिकल किसी स्टोर के ऊपर जाते हैं और आप मेडिसिन बाय करते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ जगह पर जो कुछ लोगों का ये इस तरह के सेटअप्स हैं कि आप ऑनलाइन मेडिसिन की रिक्वेस्ट करें और आपको होम बेस्ड डिलीवरी मिल जाए लाहौर के अंदर या किसी भी जगह के अंदर। ठीक है, नेशन वाइड या किसी बेसिकली एक सिटी के अंदर। ठीक, सो ये आई होप सो कि आप लोगों ने और कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो कि उनके ऊपर भी अभी मैं बात करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड।
ओके जी, सॉरी फॉर द डिले। ओके जी, सो अगर आप ऊबर या क्रीम के सेटअप को देखें, इसमें क्या बैकएंड पे नीड थी जो कि एक बिजनेस को एक नया ट्रेंड दिया गया? क्या ख्याल है, ये जो आइडिया किसी के माइंड में है जिसको क्लिक किया? पता तो ऑब्वियसली सबको है, ये कुछ कमेंट्स शेयर करें। आपके ख्याल में क्या ये बिजनेस की स्टडी थी, ये स्टार्टअप के पीछे क्या रीजंस थी इसकी तरफ जब लोग आए हैं सर प्रीवियसली? आपकी आवाज बहुत कम है। आवाज़ में तो खैर आपको ही, बाकी लोगों को किस तरह की आवाज़ पहुंच रही है जी? ठीक है सर। हम्म, ठीक है। तो शाम ज़रा कुछ सेटिंग्स ज़रा देखें अपने स्पीकर की। खैर, सो आपके ख्याल में उबर या क्रीम जो है वो उसने किस अप्रोच को यूज़ किया? क्या उनके बिज़नेस के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी थी जो कि प्रीवियसली नहीं थी और वो एक अच्छा अर्न कर रहे हैं? जी, सर इकोनॉमिकल ट्रैवलिंग। इकोनॉमिकल तो कोई ख़ास नहीं है ट्रैवलिंग। खैर, दैट कुड बी द एस्पेक्ट, इसको ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिकल है या नहीं है। सर स्टार्टिंग में जब आई थी उस तक तो इकोनॉमिकल ही थी वैसे सर। ठीक ठाक एक्सपेंसिव है वैसे उनकी ट्रैवलिंग। अच्छा, और क्या जो मेन चीज़ जो वो क्लिक कर गए और हैं एक जिसकी न्यू वजह आइडिया से? था कि आप जहाँ पे भी हो आप वहाँ पे कैब मंगवा सकते हैं अपने पास। और जी, अभी सर पता चल सर गया। एक ये भी है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड उबर कर और दिया। क्रीम, सर जी उबर बताइए। और इसके क्रीम में लिए एक और चीज ये भी थी। चल बात, हम्म, सर उबर और जी क्रीम में एक चीज ये भी थी कि सर एज कस्टमर के साथ साथ सर अपने एम्प्लॉय को भी इन्होंने देखा है, एम्प्लॉय की चीजों को। तो मतलब एक तरफ कस्टमर को भी सर तमाम फैसिलिटीज दे रहे थे और एम्प्लॉय को भी सर अच्छा पैकेज मिल रहा था, तो इसी वजह से इनका जो है ना सही चल गया है। हम्म, सर दोनों मेनली चीजों को सर इन्होंने, डिफरेंट रेट्स नहीं होंगे, एक ही रेट होगा। हम्म, इसमें हर कोई डिफरेंट नहीं मांगेगा, एक ही उनकी जो हम्म, पॉलिसी होगी उसके लिहाज से। हम्म। अच्छा, अब देखिए दो तीन चीज़ें बुनियादी सी। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास चीज़ें लेट से थी, लोकल बसेस थी, लोकल वैन्स थी, रिक्शा था। ठीक है, कुछ चिंगचीज़ थे जो कि सर्टन एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जा रहे हैं, और कुछ जो रिक्शा वगैरह है वो आप अपने घर भी या सोसाइटी के अंदर भी मंगवा सकते हैं। लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी कि अगर आप जिस प्लेस पे बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर आपको रिक्शा लेने जाना है तो आपको बाहर एक सर्टन एक मार्केट पॉइंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको बाहर एक सर्टन पॉइंट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ से जाके आप अपनी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करेंगे। और अगर लेट से कोई अवेलेबल नहीं है घर में, लेट से अगर फीमेल्स हैं, कोई मेल है ही नहीं, और अगर मेल भी है, जैसे अभी गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, सम हो, सो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज? वो एक प्रॉपर एक एक्टिविटी है, वहाँ पर आप जाएंगे, उसको आप सर्च करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, एक पूरा एक 30 to 40 मिनट्स की एक पूरी एक रिहर्सल आपको ये सारी चीज़ों के लिए करनी पड़ेगी। और लाजमी नहीं कि हर किसी के घर के बिल्कुल करीब से वो अवेलेबल हो, राइट? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने एक ऐप प्रोवाइड कर दी जिसके ऊपर जो लोग बाहर किसी पॉइंट के ऊपर वेट कर रहे थे कि उनको कोई फैसिलिटी मिले, लेट से बसेस वाले या इस तरह के लोग जो हैं, ठीक है, वो जैसे वेट कर रहे थे कि किसी कस्टमर को वो ढूंढे, अब उनको एक प्लेटफॉर्म पे कस्टमर मिल गया, और जैसे कस्टमर वेट कर रहा था कि वो बाहर जाकर किसी चीज़ को ढूंढे, उनको भी एक जो है वो पॉइंट मिल गया कि जहाँ पर वो, ठीक है, ठीक से, ठीक है, जी सर, और इसमें एक और भी चीज थी कि मतलब कि वो जो प्रॉफिट मतलब कि वो दे रहे हैं वो अपना ऐप में से वो अपना ज्यादा कमा रहे थे कि जैसे ऐप जितनी देर यूजर यूज करता है तो उनको वो प्रॉफिट वहां से भी आता है, तो वो चार्ज इस तरह वो ना लोगों को कम चार्ज करते थे
और अपने एम्प्लॉयज को भी स्टेबल रखते थे, मतलब कि उनको भी जी जी बोनस देते थे, और टाइम जी सर मतलब कि जो ट्रैवलिंग का बचता था कि हमें ढूंढनी पड़ती थी जैसे आपने बताया, वो भी सर बहुत कम हो जाता था कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें सारी चीजें डोर स्टेप पे अवेलेबल हो जाती थी, प्राइस रेट से सारा कुछ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और एक किसी ने कमेंट किया हुआ था डिफरेंट रेट्स भी नहीं है, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उसमें कोई बार्गेनिंग वाली सिचुएशन भी नहीं है, और आपके पास एक डिफरेंट वैरायटी है कि कौन सी आपने करनी है, आप अपनी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगेन अगर गर्मी है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है यू विल गो फॉर दैट। और अगर लेट से बारिश वगैरह है तो फिर बाइक वगैरह को तो आप नहीं मंगवाएंगे, ठीक है। तो अगेन आपके पास एक पूरी एक रेंज है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कुछ फेयर रेट्स भी आपको हुए होते हैं। सो ये चीज़ें पहले आपको अवेलेबल नहीं थी, चीज़ें मौजूद थी। देखें इनोवेशन जो अगेन बार बार मैं बात कर रहा हूँ, चीज़ की नज़ाकत को समझें कि चीज़ें मौजूद थी, लोग भी जाना चाह रहे थे, वही लोग हैं, ज़रूरतें उनकी पहले भी वही थी, आज भी वही हैं, गाड़ियाँ भी मौजूद थी, चीज़ें सारी चल रही हैं, लेकिन इस तरह का एक आइडिया नहीं था। लेकिन ये अगेन विद इन द सिटी है, आउट ऑफ द सिटी कुछ उसको कर रहे हैं, कुछ उसको नहीं कर रहे, ड्रॉबैक्स अप्स एंड डाउन, जी ये सारी चीज़ें दैट इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ, हम उसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस नहीं कर रहे। सो ये इसी तरह ही आप कोई ना कोई एक, इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की बात कर रहा हूँ तो पहले भी लोगों के पास उनके घर में अप्लाइंसेस भी थी और वो पे भी कर रहे थे, उनके बिजली का सारा सेटअप भी था, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंट उन्होंने करना चाहा था कि लेट से अगर लाइट की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है तो उससे वो बच जाएँ, अगर उनके बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उससे वो बच जाएँ। तो इस तरह जब वो बैकअप्स पे या डिफरेंट प्लान के ऊपर उन्होंने अपनी ज़रूरत महसूस की, जैसे लेट से स्टार्ट में तो पावर बैंक्स नहीं अवेलेबल थे मोबाइल के, या ये आइडिया तो नहीं क्लिक किया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हुई कि स्मार्टफोन्स हैं, बहुत जल्दी बैटरी ड्राई आउट हो जाती है, अब मोस्टली लोगों के पास पावर बैंक्स की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। पहले लैंडलाइन का कॉन्सेप्ट था, आप एक तार के ऊपर फिक्स थे, ठीक है, और उससे पहले शायद कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर उसके बाद मोबिलिटी की वजह से मोबाइल आया ताकि आप एक ख़ास स्टेशन से पे बाउंड ना हो जाएं, आप एक डिफरेंट पे चले गए, ठीक है। जैसे फिर जब वो चीज़ें चली तो आपके पास टेक्स्ट के बाद कोई एमएमएस वाला दौर था, वो एक अजीब सिस्टम था, पिक्चर की वो क्वालिटी नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी। अब आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, हम एग्ज़ाम्स भेज रहे हैं, पेपर भेज रहे हैं, ठीक है, एक हाई डेटा रेट मिल रहा है, आप बात कर रहे हैं बाहर लोगों से। सो एनी ये सारी चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये पूरी एक मार्केट है जहाँ कहीं भी आप देखेंगे। सो ये एक नुक्ता जो है उसके आगाज़ का वो ये ऊबर क्रीम की एग्जांपल देने का मकसद ये था कि एटलीस्ट एवरीवन इज़ फेमिलियर विद इट, ठीक है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो प्रॉब्लम जो आएगी उसके ऊपर आप कोई सलूशन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिक्चर बनी है, अगर ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग के अंदर कि एक प्रॉब्लम आई माइंड में, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस और जो डिफरेंट लर्न वेज हैं उनके थ्रू आप कोई कन्वेंशनल उसका सलूशन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेक्निकली आप क्या करते हैं कि आप पूरा उस चीज़ को लर्न करते हैं। ये जो लिटरेचर रिव्यू का वर्ड है ना, ये जो बार बार मैं यूज़ करता हूँ, माइट भी आप उससे फेमिलियर हैं या नहीं हैं, उसकी एग्जैक्ट चीज़ क्या है कि लिटरेचर मौजूद है, नॉलेज मौजूद है पहले से, आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, व्यू जैसे करना होता है। सो आप उस इल्म को जो है उसको देख रहे हैं, उसको अपने एंगल से उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसमें से कोई काम की चीज़ निकालते हैं। लिटरेचर रिव्यू डजंट मीन्स कि यू आर डूइंग समथिंग न्यू, ऑलरेडी जो अवेलेबल पूल ऑफ नॉलेज है उसके अंदर से आप कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, ठीक है, और फिर आप उसको यूटिलाइज करेंगे अपने ये सारे नॉलेज के बेस के ऊपर एंड सम हाउ, ठीक है। सो ये दैट इज़ द वे कि हाउ वी ग्रो टुवर्ड्स द सम कंक्रीट पॉइंट्स, ठीक है। और इसमें आपके पास फिर आप एवेंचुअली जैसे जैसे चीज़ों को लर्न करते हैं, आप उनको जब उनको कंपेयर करते हैं, उनके गुड बैड्स, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, उसके प्रो कॉन्स, तो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो रिफ़ाइन होती जाती है, वो मज़ीद आप एक सलूशन की तरफ जाते जाते हैं, ठीक है। और आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस उसके अवेलेबल होते हैं, फिर उसमें से जो
ऑब्वियसली फिजिबल होगा, जो इकोनॉमिकल होगा, जो एक वायबल होगा, उसको आप अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और समटाइम आपको पता है कि आपके पास बहुत से किसी प्रॉब्लम से बाहर आने के तरीके होते हैं, आप उनको कोट भी करते हैं और एंड पर ये भी कह देते हैं कि ये भी एक तरीका है, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता, इसमें ये इशू है, ये भी हम कर सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ठीक। सो ये ट्रेडिशनल वे में भी हम इस चीज़ को मतलब कि करते हैं इस तरह से। अब अक्सर आप मॉल्स के ऊपर जाते हैं तो जहाँ पर बिल हो रहा होता है उस डील के साथ आपने देखा है कि कुछ उन्होंने चॉकलेट्स, कुछ टॉफ़ी वगैरह वहाँ पर पड़ी होती है, कुछ छोटा सा कोई बिस्किट का या कोई ऐसी चीज़ जो कि पीछे नहीं चल रही होती, उसको ला के वहाँ पर रख दिया जाता है। किसी को भी कहते भी नहीं है तो आप उनमें से कोई ना कोई चीज़ें पिक कर लेते हैं। क्या ख्याल? जब आप डील पे करवा रहे होते हैं, ठीक है, बिल आप करवा रहे हैं तो उसमें से आप कोई एक दो चीज़ें पिक कर लेते हैं। अब इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, बस उसने एक अपना एक माइंडसेट उसने चेंज किया है। क्योंकि अगर मैं इस बिलिंग काउंटर के ऊपर अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं पड़ी हुई, किसी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे लगी हुई है जहाँ पे उनकी ओरिजिनल पोजीशन है, मे भी हो सकता है कि मैं जो चीज़ ख़रीदने गया हूँ, मैं उन सारे को तो मैं नहीं ना सर्चिंग करूँगा, मुझे तो जो चीज़ की ज़रूरत है मैं उसको बाय करूँगा और मैं आ जाऊँगा। मैं उनके हर कॉर्नर्स के अंदर जाके तो नहीं झांकूँगा कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है। लेकिन जब मेरी उस पर नज़र पड़ेगी बिल काउंटर के ऊपर, मैं उसको परचेज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये प्लान्स हैं बिज़नेस के, कुछ छोटा मोटा कोई सेटअप होता है। जैसे आप लट से शू ख़रीदने जाते हैं तो आपको जो उसकी एसेसरीज़ हैं, पॉलिश की ऑफ़र करवाई जाती है, शू शाइनर की ऑफ़र करवाई जाती है, किसी ने वहाँ पे स्टड्स रखे हुए हैं, कफलिंग्स हैं, किसी ने कोई और बेल्टिंग का वहाँ पे सेटअप किया हुआ है, हालांकि वो पैंट शर्ट्स की शॉप नहीं है। ठीक है, सो सम हाउ वो उन्होंने एक चीज़ रखी हुई है कि जब एक कस्टमर आया है, ठीक है, वहाँ पर उससे रेलिवेंट कुछ ना कुछ वो परचेज़ कर लेगा। हो सकता है आप उनकी शॉप के ऊपर स्पेशल पॉलिश के लिए या शू शाइनर के लिए तो विज़िट नहीं करेंगे, वो आपको अपने लोकल करीबी जो ग्रॉसरी शॉप्स या मतलब करियाना या सम हो इस तरह की कोई जो मॉल्स हैं कोई छोटे से, उनके अंदर भी ये चीज़ें आपको मिल सकती है। इसके लिए पर्टिकुलरली आप शू शॉप को जाके विज़िट नहीं करते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँच ही गए हैं तो इस कस्टमर को वो एक बेटर वे में अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसको कि इन्हांस किया जा सकता है। ठीक है, बीच में और चीज़ें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ या उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे आती है? ऑब्वियसली जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, आप चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सोचते हैं, उस पर क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर जाके पहले आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो एक जनरल प्रॉब्लम होती है, उसको आपने रिफ़ाइन नहीं किया होता। ठीक है, जैसे जैसे आप उसको सोचते जाते हैं फिर आप उसको रिफ़ाइन करते हैं। जब आपकी प्रॉब्लम थोड़ी रिफ़ाइन हो जाती है फिर मेथडोलॉजीज़ की तरफ आप मूव करते हैं, और मेथडोलॉजी में भी आपके पास बंडल ऑफ वेज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आपको प्रोजेक्ट ले ले, तो आप कोई अगर कंट्रोलर पे कर रहा था तो आपके पास माइक्रो कंट्रोलर डिफरेंट टाइप के अवेलेबल थे, आपने उनमें से कोई एक पर्टिकुलर चूज़ किया। ठीक है, और जब आप अप्रोचेज़ भी डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें मल्टीपल अप्रोचेज़ आपके पास होंगी। ठीक है, लेट्स से अगर मोटर की स्पीड कंट्रोल के ऊपर अगर आप देखें तो उसके ऊपर आपके पास मल्टीपल वेज हैं। आपकी बुक के अंदर जो कोर्स बुक है उसके अंदर भी एक चैप्टर में पूरा प्रॉपर मेंशन है, डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हैं कि कौन से वे को आपने अप्रोच करना है। जब आप काम करेंगे तो इवेंचुअली आप एक किसी एक को चूज़ करेंगे। ठीक, सो जो आप मेथड चूज़ कर रहे होते हैं वो आप उसको कन्वीनियंट भी कह रहे होते हैं, उसको आप फिजिबल भी कह रहे हैं, वायबल भी कह रहे हैं, इकोनॉमिकल भी कह रहे हैं, सारी चीज़ें आप उसकी अपने सामने ला रहे होते हैं। अब जो ये तो हम इंजीनियरिंग वाले ना, जो नॉन इंजीनियरिंग जो लोग होते हैं ना, नॉन टेक्निकल जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये आपके जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स, ये सॉरी नॉन इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं, लेट से बैंकिंग सेक्टर वाला कोई है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बिजनेस है, फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, समहाउ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, उनके पास कोई ना कोई सर्वे फॉर्म्स होते हैं, वो लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, उनके ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन होती। ठीक है, वो उनके थ्रू एनालिसिस कर रहे थे। सपोज लेट से जैसे आपके पास एक फीडबैक फॉर्म है, आपके पास कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आप किसी सर्टन पर टिक मार्क्स कर रहे हैं, वहाँ से रिजल्ट
जो है वो जनरेट किया जा रहा है और उसके डिफरेंट कॉलम्स बन रहे हैं कि लेट्स से जी टीचिंग असेसमेंट, क्लास मटेरियल, सम एलएमएस, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, डिफरेंट। ये एक सर्वे फॉर्म दे दिया गया। अगर ये फॉर्म में कोई कमी पेशी होगी तो वो रिजल्ट पे भी रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। लेट्स से उसकी अगर स्टेटमेंट ठीक नहीं है या किसी को स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही तो वो उसका तुक्का लगाए और उससे क्या होगा कि रिजल्ट जो है वो फेक जनरेट होंगे, ठीक है। सो जो नॉन इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि सर्वेज, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं बड़ी कॉमन है। तो वो हमारे जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं वो इस तरह से नहीं करते क्वेश्चनर फॉर्म या इस तरह से। तो इसको डिज़ाइन भी अगर किसी ने जब करना होता है तो उससे ठीक से डिज़ाइन किया जाता है। कुछ लोगों से शायद इंटर्नशिप फीडबैक फॉर्म्स फिल करवाए हों, किसी से करवाए थे, डिपार्टमेंट ने दिए और आप जहाँ पे इंटर्नशिप की थी वहाँ से फॉर्म्स फिल करवा के कुछ लोग लाए हों या कुछ ऐसा कुछ किसी ने किया हो। यस सर। इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये हमारे वाली जो रिसर्च है, हम जो लोग इंजीनियर्स काम करते हैं, हम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करते हैं, हम हार्डवेयर्स के ऊपर काम करते हैं, हमारे प्रॉपर रिजल्ट्स निकलते हैं, हम चीज़ इस बेस पे नहीं कहते। जैसे लेट्स से अक्सर आपने देखा ना, आप पोलिटिकली कुछ सर्वे करवाते हैं कि जी कौन सी जमात की जी ज़्यादा मकबूलियत, अक्सर आप ये न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, या कौन से जी लीडर की ज़्यादा मकबूलियत है, आइदर दैट इज़ नेशन वाइड या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, क्या उन्होंने कोई मशीन लगाई हुई है, क्या वो किसी हार्डवेयर के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करें, नहीं, वो जाके लोगों से पूछते हैं। समझ रहे हैं बात को? आप सोशल मीडिया पे पोल्स अक्सर देख रहे होते हैं, ठीक है, या आप कोई कंपनी है उसकी फीडबैक है, उसके वो स्टार्स लगे हैं 1 2 3 4 5, आप किसी न किसी को रेट करें, किसी के ऐप को रेट करें। तो ये जो नॉन इंजीनियरिंग वाले लोग होते हैं ये इस चीज़ों के थ्रू जो है वो करवाते हैं, ठीक है। और इसमें भी फर्दर वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। हमारी इंजीनियरिंग की क्वांटिटेटिव में आ जाती है, ये क्वालिटेटिव वाले लोग ऐसे कर रहे थे जो कि फीलिंग्स, व्यूज़, इस तरह की चीज़ें। कुछ लोग जाके बाकायदा पूछते हैं, अक्सर आपने टॉक शोज़ में देखा होगा, वो कहते हैं कि हम हल्के में गए और हल्के के लोगों की उस पर ये राय, हमने वहाँ से जाके लोगों से ये पूछा। लेकिन हम इंजीनियरिंग वाले इन चीज़ों की तरफ नहीं होते, ठीक है, सर्वेज और इस तरह की चीज़ों। हम क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर के ऊपर या हार्डवेयर के ऊपर परफॉर्म करते हैं और हमारी क्वांटिटेटिव जो होती है ना, ठीक है, वो सेटअप होता है सारा, ठीक है। आइडिया जब हमारे पास जनरेट हो जाता है, लिटरेचर को जब हम रिव्यू कर लेते हैं, तो फिर उसकी बेस के ऊपर हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम जाके जो अपने रिजल्ट्स वगैरह उनको निकालते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से हमारी वर्किंग उन लोगों की वर्किंग से डिफरेंट है। तो आपके ख्याल में बीइंग एन इंजीनियर आप क्या रिकमेंड करते हैं? इनोवेटरी आइडिया आपके जहन में, आपके अपनी फील्ड से रिलेटेड है किसी के जहन में वैसे ही जो सोचते हो, या प्रोजेक्ट में किया हो कि जो कोई डिफरेंट कोई चीज़, या आपको लगता हो कि वो थोड़ी डिफरेंट है, या आप चलें अपने प्रॉब्लम जो प्रोजेक्ट आपने कर लिया, अब उसके ऊपर आपने सारा काम कर लिया, आपके ख्याल में उसमें इनोवेशंस क्या क्या लाई जा सकती हैं? सब ग्रुप में किया होगा ना, कोई एक बता दे कि हमारे ग्रुप का ये प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर में और हमने फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी होती हैं ना, तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे देखते हैं, उसी में फिर थोड़ा इनोवेटरी टच आएगा ना, क्योंकि एक वो काम है जिसके ऊपर एटलीस्ट आपने साल काम किया या एटलीस्ट उसके बारे में सुना है, सोचा है, ठीक है। तो आप एक बेहतर पोजीशन के ऊपर अभी खड़े हैं उस टॉपिक के हवाले से, बजाय कि इन जनरल बात करने की। तो थोड़ा सा बताएं मुझे। सर मैं बताऊं, जी जी बताएं। सर हमारा था व्हीकल प्लाटोनिंग, मतलब कि वो हमारी जो बेसिकली कार्स थी वो एक ना सेम फंक्शन परफॉर्म करती थी। मतलब कि जैसे ही वो मास्टर कार बिहेव करेगी वैसे ही पिछली कार जो स्लेव कार है वो भी बिहेव करेगी। तो हमारा सर था कि जो आजकल की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है और एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, पोल्यूशन जो हो रही है, और हैवी ट्रक्स के लिए ये मतलब कि कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो सर ये इसकी हमारी फ्यूचर अप्रोच ये थी कि जैसे सर यूएसए में स्पेस एक्स है जो स्पेस के लिए वर्क कर रहे हैं, तो सर वो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि जैसे जो अब सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है टेस्ला, सर उसमें ना ऑटोमेशन कार्स, मतलब कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसमें ये कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रही है जो
एक दूसरे के ऊपर कम्युनिकेट करके सर चले। और अगर किसी ने सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, जैसे अगर वो प्रोग्राम डिटेक्ट करेगा क्योंकि वो एक ही सर्वर से मतलब कि कनेक्ट होगा, तो सर ये इसकी ऐसी अप्रोच है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस को एक तो मतलब कि कम करेगा कि कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे, एक ही लाइन में जाएंगे, और सर फ्यूल कंजम्पशन होगी और बाकी चीजें होगी, इसको भी मतलब कि मिनिमाइज करेगा। अगर वो बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, दूसरी व्हीकल है, तो सर जो सडन एक्सीलरेशन होते हैं और सडन ब्रेक्स होते हैं उसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। तो हमारा सर ये कॉन्सेप्ट था कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को ऐसे लिया जाए कि वो सेल्फ ड्राइविंग भी हो, एक दूसरे के सेम सर्वर पे काम करके अगर किसी ने एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसको सर्वर्स को पता हो तो वो एक ही लाइन में वो गाड़ियां ले आए और वो एक दूसरे के पीछे जाए, जिसने आगे जाना है उसकी कम्युनिकेशन टूट के आगे वो खुद ही उसको चला ले। सर हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। सही ठीक है। टेस्ला है, टेस्ला एंड एलन मस्क इज क्वाइट फेमस नाउअडेज। बड़े हाँ सर वो ट्वीट। बहुत मस्त है तो। हाँ जी हाँ, वो मीम ही है एक, लेकिन खैर बड़ा एक्टिव है, बड़ा हाँ उसने सर। अपनी एक क्लास एक बना के रखी हुई है। और वैसे लोग बड़ी बुजुर्गी में जाके किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, वो थोड़ा एक रीजनेबल एज पे पहुंचा हो ऐसे पॉइंट के ऊपर। तो और जी कोई शेयर करना चाहिए इस तरह की कोई अच्छी सी बात, कोई प्यारी सी? सर हमने जैसे प्रोजेक्ट किया था कम्युनिकेशन के वाले से, वो हमने लाइट के जरिए कम्युनिकेशन की थी, विजिबल लाइट के जरिए। ठीक है। तो जो उसमें इनोवेटिव पार्ट या जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स थे उसमें ये था कि हम जब डिफरेंट बीकन से या डिफरेंट एंटीना से रिसीवर के ऊपर इंफॉर्मेशन आती थी, तो वो लाइट को दो मतलब अगर सेपरेट जगह से है तो वो उसको सेपरेट अभी नहीं हम कर पाए थे उसको, कि उसको सेपरेट जब मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको सेपरेट कैसे किया जाएगा। तो विजिबल ये जो इनविजिबल लाइट के थ्रू आपने काम किया था, इनविजिबल थी, नजर नहीं नहीं सर, आ रही थी? विजिबल अच्छा विजिबल विजिबल के थी। जो हम लाइट यूज करते हैं, ये एलईडीज वगैरह, इनके जरिए हाँ ठीक है कम्युनिकेट। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं बेसिकली डायोड पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर इंटरेस्टेड था, तो एलईडीज़ को आपने यूज़ किया। बेसिकली मैं उस पर यही कुछ नतीजा निकालना चाह रहा था कि कोई चीज़ पता, क्योंकि मेरे पास सीडीसी के भी स्टूडेंट्स हैं, सो उस एंगल से चीज़ों को थोड़ा बोल्ड करने की मैं कोशिश कर रहा था। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है जी, अटेंडेंस जो हमने दूरी छोड़ी थी उसको लगा लेते हैं और तोको करते हैं कि लाइव दोबारा ना जाए, अल्लाह करे। और चलें जी, अब्दुल रहमान, ठीक है, उसने पहले बोल दी। ठीक है स्टूडेंट्स, सब अटेंडेंस पे ज़रा आने लगे हैं, तो अब्दुल रहमान ने पहले बोल दी थी, चलें दैट्स फाइन। अब्दुल्ला बशारत, अब्दुल्ला बशारत नहीं है, ओके जी। आबिदुल्ला, आबिदुल्ला अटेंडेंस पे आ जाएं ज़रा। ठीक है, उसके बाद ये अफान आसिफ, ठीक है, अफान आसिफ, प्रेजेंट सर। ओके। रिजवान मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर। ठीक है। और अली सुहेल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक ठीक है जी, ठीक है, नोट ही फेंक रहे हैं माशाल्लाह। इत्शाम अहमद, इत्शाम, अब्दुल्ला दोस्त तेरा है इधर, है मीटिंग के अंदर? हाँ जी ठीक है। फाद इफ्तिखार, ठीक है, प्रेजेंट आ रही सर। बात। ठीक है जी। हाफिज फैजान भट्ट, Yes, sir. ठीक है। हमजा ताहिर, हमजा प्रेजेंट ताहिर, सर। ठीक है। हशाम सरवर, ओके प्रेजेंट जी, सर। ओके। हसन अली, ओके। खुरम शहजाद, ओके जी। मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। और असद मेहदी, यस सर। ठीक है जी। दाऊद मंसूर, दाऊद मंसूर, ये जी। हमजा रमज़ान, यस सर।
ठीक है। निशान शाहिद, प्रेजेंट सर। हसाम सदीक, सर। मोहम्मद मजहर कल भी नहीं था, इसको ज़रा स्ट्रिक्टली वार्न करें, है भी बीच में मौजूद, मीटिंग में है लेकिन बोल रहा मजहर ठीक हो जाएं। मोहम्मद शरियार, प्रेजेंट सर। ओके जी। उमर फारूक, यस सर। ठीक। उमर हयात, जी, उमर हयात भी मीटिंग में है और बात। बकास, प्रेजेंट सर। ठीक है। मुश्तबा आमिर, ठीक है जी। प्रेजेंट सोहेल सर। करीम बुगटी, ठीक। सोहेल करीम बुगटी, सुलेमान अहमद भट्ट, यस सर। ठीक। और उज़ैर इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। कोई और जिसको आवाज़ ना गई हो, कोई मसला बन गया हो? मेरे पास अभी जो नहीं है मौजूद, दाऊद मंसूर नहीं है, अब्दुल्ला बिशारत नहीं है और खुरम शहजाद नहीं है, ठीक है। चलें जी, सेव मैं कर रहा हूँ अटेंडेंस। आपका क्विज़ अनाउंस किया हुआ है, ठीक है, और वो वेडनेसडे को अनाउंस किया हुआ है। कंट्रोलिंग का जो चैप्टर है उसके ऊपर है, ईमेल के ऊपर मैंने CLO और वो सारा मेंशन करके भेजा हुआ था, तो कंट्रोलिंग के ऊपर वो होगा। टाइम वगैरह भी उसके अंदर लिखा हुआ है, उसका कोई रीटेक वगैरह नहीं होगा। वी आर क्वाइट बिजी नाउ, तो कोई इस तरह की मैं क्यूरी इंटरटेन नहीं कर पाऊँगा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। सो लिहाजा आप अपने वक्त के ऊपर उसको दें, और जो 1-2 लेक्चर रह गए हैं उसमें रेगुलर रहें। कुछ लोग बहुत एज के ऊपर हैं और मैं बड़ी देर से उनकी तरफ देख रहा हूँ, ये ना हो कि मैं आंखें बंद करूं और वो 1 साल की दूरी पे चले जाएं, उनको ये कोर्स दोबारा पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। सो आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन अभी मैं आपको बचाता हुआ लेके आ रहा हूँ। उस पर मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया है, मैंने आप लोगों के ऊपर नज़र रखी है, आपको समझाया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत करीब करीब हैं आप। तो ये आपके अपनी काम है, मेरा एटलीस्ट इस पे ज़मीर मुतमिन है कि मैंने इनको बहुत गाइड किया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच जाएँ, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश नहीं है तो मैं बिल्कुल जो है आराम सुकून से आपको शॉर्ट अटेंडेंस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अपने तौर पे सेटिस्फाई हो चुका हूँ कि मैंने इनको एक हद से ज़्यादा गाइड कर दिया है। जब मेरा ज़मीर साफ़ है तो फिर मुझे शॉर्ट अटेंडेंस करते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। एज़ पर SOPs आई विल डू दैट। ठीक हो जाएं सारे, और जो जो एजेस में हैं उनको बेहतर पता है, और कोई भी एक सिंगल एब्सेंटीज़ एजेस वाले ने की गया मेरी तरफ से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. हाफिज़।